Welcome to Borail News. Dimasa organization demands immediate suspension of DSP. The All Dimasa Student Union, Dimasa Student Union and Dimasa Mother Association on Wednesday staged a dharna near Deputy Commissioner Office in Haflong, seeking immediate suspension of DSP Surya Kanta Morang for his alleged involvement behind abduction and killing of militant-turned-contractor Santosh Hojai. আজি 20 তাৰিখ আৰু আজি ডিসি অফিসৰ সন্মুখত আমি ধৰ্ণা ৰাখিছোঁ। ইয়াতে আমাৰ ডিমাছা সংগঠন আমাৰ আটসু ডিএসউ ডিএমএ আমি তিনজন মিলাই পেলাই ইয়াতে ধৰ্ণা ৰাখিছোঁ। 3 দিনৰ প্ৰগ্ৰাম 3 ঘণ্টা আৰু আমি আজি প্ৰগ্ৰাম দি আমি এটা গভৰ্ণমেণ্টত এটা দাবী জনাব বিচাৰোঁ যে আমাক সিবিআই এনকুৱাৰী লাগে। তাৰপিছত ইয়াতে যেটো গভৰ্ণমেণ্টৰ যেটো ফ্যামিলি ভিকটিমক এক্সগ্ৰেছিয়া যেটো কম্পনসেশন গ্ৰাউণ্ডত যিমান পাব লাগে এটো সোনকালে গভৰ্ণমেণ্টে এনাউন্স কৰক। আৰু ডিএসপি মৰাঙত তাক একুজ কৰা যোনটো হি নিজে সবে গোটে গম পায় যে এটা ইনভলভমেন্ট আছে বুলি ইয়াতে সেইকাৰণে তাক সাসপেনশন আৰু এৰেষ্ট কৰিব বিচাৰি দাবী কৰিছো। আৰু এইটো এসআইটি গঠন কৰাৰ পিছত কমিটি বহা পিছত তাক সাসপেন্ড নকৰাকে কেনেকৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলে। আৰু ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি এইটো পানিশমেন্ট নহয়, তাৰ কাৰণে আমি ৰাজ্যৰ মানুহে বহুত কন্ডেম কৰিছো এইটো। আৰু চৰকাৰক আমি ন্যায় বিচাৰো যে আমি সোনকালে ইয়াতে আমাৰ ডিমাছাক যোনটো শান্তি বনাই ৰাখিছিলোঁ আমি গোটেই পাব্লিকে মিলি পেলাই এইটো সোনকালে আমাক ন্যায় দিয়ক। আৰু আমি যদি এইটো 3 দিন ভিতৰত যদি চৰকাৰে যদি একো যদি ফলাফল আমি নাপায় যদি আমি তাতকৈ ডাঙৰ আৰু প্ৰগ্ৰাম আৰু এজুকেশ্যন কৰিম বুলি আমি দাবী কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে যিমান আমাৰ সংগঠন আছে সবে পাব্লিকে সবে মিলি পেলাই ইয়াতে আমাৰ এই যে প্ৰগ্ৰামত তেখেতে আমাক হেল্প কৰিছে। আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা দাবী আছে যে গভৰ্ণমেণ্টে সোনকালে আমাক ন্যায় দিয়ক। আৰু যেটো ইয়াতে শান্তি বিচাৰিছে যোনটো মোদী চৰকাৰে যোনটো সবকা সাথ সবকা বিকাশ কৈ আছে ইয়াতে দেখা যায়তো আমি অসমত থাকিও ইণ্ডিয়া থাকিও আমি কনষ্টিটিউশ্যন আমাৰ যোনটো আছে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ যোনটো আছে আমি ইয়াতে থাকিও নাথাকা নিচিনা হৈ গ'ল। আমি কি ভুল কৰিছোঁ? আমি অসমৰ মানুহ নহয় নেকি? আমি ইণ্ডিয়ান মানুহ নহয় নেকি? সেইকাৰণে ইণ্ডিয়ান সংবিধান আৰু ল এণ্ড অৰ্ডাৰত আমি অনাৰেবল কোৰ্টত বিশ্বাস আছোঁ যে আমাক শিওর আমি সোনকালে এইটো ন্যায়টো পাম বুলি আমি ভাবিছোঁ। তাকেই কৈছোঁ যে আমাক যোনটো মানে ৰক্ষা কৰিব লাগে যে জিলাক পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত তেখেতে নিজে লকডাউনৰ সময়ত তেখেতে নিজে নিজৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ নিজে ব্ৰেক কৰি এজন মানুহ কিডনেপ কৰিছে। সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে ৰক্ষক সি বক্ষক আৰু যোনটো আমাক ছেফটি দিব লাগে যোনটো আমাৰ লাইফ ছিকিউৰিটি দিব লাগে তেখেতে নিজে ভংগ কৰিছে। আৰু আমি নিবিচাৰোঁ যে তেখেতে তেনেকুৱা ঘটনা আৰু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত তেনেকুৱা হ'ব বুলি আমি নিবিচাৰোঁ। The organization also submitted a memorandum in support of their demand. The memo also urged for rehabilitation and compensation to the family. जो 24 अप्रैल में जो लेट संतोष होजाई को उठाया वो लोक आदमी पुलिस का आदमी इन्वॉल्विंग डीएसपी मोरांग सिविल ड्रेस में गया जाके उठाया है। तो उसी कारण में हम लोग को यहाँ में जो धरना हुआ उसको 6 दिन का पीछे में उसको जो डेड बॉडी मिला है, डेड बॉडी भी बहुत खराब तरीका से मारा है और उसको ऊपर से गारा है, ऊपर से देखने का लायक नहीं है। वैसे कोई आदमी मराने का तरीका है क्या? नियम है उठू कुछ उसको अगर कुछ उसको इन्वेस्टिगेशन करना है नियम से करना था, लेकिन ऐसे जो उठाया है मराया है ये तो बिल्कुल गुंडाराज है। सिपाही वो जो डीएसपी जो किया वो पूरा गुंडा लोग जो करता है वो पूरा ऐसे है। वो लोग का आदमी ऐसे नहीं है। वो आदमी जहाँ भी है वो अरेस्ट होने लगता और सस्पेंड होने लगता। और हम लोग को ये जो इसको केस में इसको इंक्वायरी लगता है, हम लोग को सीबीआई इंक्वायरी लगता है। और इसके वास्ते से हम लोग चीफ मिनिस्टर असम चीफ मिनिस्टर को हम लोग रिक्वेस्ट करता है जो सीबीआई यहाँ पे लेके
ये पर्टिकुलर केस में ये पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पूरा थॉरली इंक्वायरी करके ये जस्टिस हम लोग को लास्ट तक हम लोग को चाहिए। The allegation was made after CCTV footage of DSP Morang along with other policemen buying fuel in a jerrycan from Maibang Fuel Depot was gone viral. Hojai was abducted by 5 unknown people from his house at the Madi Hawar under Haringajau police station. 6 days later, his decomposed body was found buried near National Highway 27 road, 100 kilometers away from his home at Lailing Reserve Forest under Langting police station. His body was exhumed in presence of executive magistrate. The body also shows burnt marks apart from several injuries. However, autopsy report says those were antemortem. In a recent reshuffling of top police official, DSP Morang had been transferred to 21 Assam Police Battalion at Katlichera in Hailakandi district. He has been replaced by Assistant Commandant of 2nd Assam Police Battalion, Borkiri Terang. आज 20 मई को हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं डीसी ऑफिस के सामने, और ये धरना हम लोग मजबूरी में दे रहा है क्योंकि जो लेट संतोष होजाई का जो केस है उसका ऊपर जो भी अभी कार्रवाई हुआ है उसका हम लोगों को अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिला है। तो ये एक तरफ से जो भारतवर्ष में लॉकडाउन 4.0 चल रहा है, इसके बावजूद हम लोग को यहाँ पे मजबूरी में धरना दे रहा है क्योंकि हम लोग को अभी हर हालत में न्याय चाहिए। और जो एसपी और डीएसपी का जो रिसेंटली ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आम जनता के ऊपर उठ गया है क्योंकि जो लेट संतोष होजाई का जो धर्मपत्नी है उनका तरफ से जो एलिगेशन निकला था कि इसमें डीएसपी मोरांग का हाथ है, तो एक एलिगेशन निकलने के बाद उसका कुछ नई क्लैरिफिकेशन आता है। जो ऑयल डिपोट पे जो डीजल पेट्रोल लिया था उसका ऊपर भी कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ था, और जो एसपी का भी एक भी क्लैरिफिकेशन नहीं निकला था। और उसके बावजूद जो गवर्नमेंट ऑफ असम की तरफ से एक ऑर्डर निकलता है ट्रांसफ़र का, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और हम लोग आज जो धरना दिया है, ये हम लोग का मेन जो पॉइंट है, ये हम लोग को हर हालत में सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का तरफ से जो एसआईटी फॉर्म किया है उसका जल्द से जल्द कार्रवाई होना है और जल्द से जल्द रिपोर्ट मिलना है, ये हम लोग का भरोसा है। और दूसरा नंबर पे जो हम लोग का एक्स क्रीचर जो लेट संतोष होजाई का फैमिली को जल्द से जल्द सरकार के द्वारा मिलना है, और जो अभी इंक्वायरी होगा इसमें फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होना है, ये हम लोग का मांग है। और ये 3 दिन का जो हम लोग का धरना है, ये हम लोग साइलेंटली हम लोग शांतिपूर्वक करेंगे। उसके बाद अगर सरकार के द्वारा हम लोग को कुछ अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो इससे और जोरदार हम लोग डेमोक्रेटिक आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएगा। ये हम लोग का सरकार को एक मैसेज है। जो देखिए, अभी जो रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, तो हम लोगों को आम जनता का मन में एक डर पैदा हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन के बावजूद यहाँ पे एक गाड़ी और 5 मिसक्रेंट्स जो अननोन मिसक्रेंट्स है, वो लोग जाके अगर उठा के एक पर्सन का किडनैप और मर्डर हो जाता है, तो एक बहुत बड़ा सरकार के और लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि एक तरफ से इसको टोटल फेलियर ही बोलेंगे, और साथ ही साथ जो रक्षक ही भक्षक हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो लेट संतोष होजाई का जो एफआईआर एज पर एफआईआर और गुवाहाटी हाईकोर्ट में जो केस दिया है, उसमें साफ तौर से डीएसपी मोरांग के ऊपर एफआईआर दिया गया है। तो इसी के कारण हम लोग आज हम सब के मन में एक डर पैदा हो गया है, और रक्षक ही भक्षक हम लोग इसलिए आज कह रहे हैं। Meanwhile, former MLA Samarjit Haflangbar had said that transfer of DSP is not a solution but an injustice to the bereaved family.
Haflong Bar also questioned that how the DSP was not arrested despite several proof had been witnessed by public as well as the police authority. नहीं, अभी तक आज जो विक्टिम फैमिली है, संतोष होजाई का फैमिली उन परिवार के साथ मिला है, छोटा छोटा बच्चे को साथ मिला है और उनसे जानकारी लिया क्या क्या घटना के बारे में। उससे पूरा पानी की तरह साफ हो गया कि ये सरकार की द्वारा आयोजित सूर्यकांतो मोरांग के लीडरशिप में उनको 24 तारीख को उठाया गया है। इसलिए वो केस को दौड़ना चाहता हूँ स्टोरी, ताकि हाईकोर्ट के जरिए से मॉनिटरिंग में जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया गया है उनको भी सुविधा हो, क्योंकि 24 तारीख उनको घर से उठाया गया। 24 तारीख दिन को हरंगजाव वासियों ने बोलेरो, व्हाइट बोलेरो बिना नंबर का जो हरंगजाव बाजार में घुमाए, सारा हरंगजाव घुमाए, कौन कौन उस बोलेरो में सवारी था, ये हरंगजाव वासी को तरफ से हमने जानकारी लिया कि वहाँ में कुछ पुलिस फोर्सेस था। खास करके यहाँ का लोकल एक लड़का है, पुलिस कांस्टेबल है, टुलूर बोल के एक, और उसके साथ में बैटलियन एक जो पहचान किया है विपुल लश्कर, और साथ में एक था बोला डिमासा भाषा में जो बातचीत किया है वो एल्विन होजाई। तो मेरा यही विनती, मोबाइल ट्रैक कीजिए कहाँ पे उस दौरान किडनैप के दौरान कहाँ में था, तो सारा चीज निकाल के आ जाएगा। उसका रिलेटेड 25 तारीख को शाम को 3 बजे माईबांग पेट्रोल पंप में सीसीटीवी फुटेज में जो दिखाया गया है, सूर्यकांतो मोरांग ने वहां में डीजल झारकी ने बढ़ाया है। और उसके बाद जो सारा एविडेंस में ये सारा उजागर हो गया है कि ये जो घटना जो हुआ है, जो अंजाम दिया है, वो सूर्यकांतो को मोरांग के लीडरशिप में ही अंजाम दिया है। इसलिए मेरा यही है कि ट्रांसफर जो है ये सफिशिएंट नहीं है। ट्रांसफर किया ये वेलकम है, हम अच्छा बात है, सरकार की तरफ से एक कदम लिया है, क्योंकि अगर वो यहाँ रहेगा तो एविडेंस को नष्ट कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन में बाधा पहुंचा सकता है। उनको ट्रांसफर किया वो अच्छा बात है, सरकार का अच्छा कदम है, लेकिन उसके साथ साथ ये सफिशिएंट नहीं है। जिस तरह से आज जो वलगार में इंसिडेंट हुआ है, जहां में साधु को मारा गया, साथ साथ उद्धव ठाकरे जी ने वहां 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। साथ साथ परसों वहां में यूपी में 24 मजदूरों को एक्सीडेंट में मारा गया है। साथ साथ में वहां का थाना का प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। ये एक्शन होना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। इसलिए जो सारा भारत में अभी कोविड महामारी का जो यहाँ पे चल रहा है, अभी महामारी चल रहा है, उसको खिलाफ में जो पुलिसकर्मी लड़ रहा है उसको हम सैल्यूट करता हूं। और यहाँ असम में हेमंत बिश्व शर्मा जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनका जो कदम है ये धन्यवाद का पात्र है। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी का जो कानून व्यवस्था, जो होम मिनिस्टर उनके हाथ में है, यहाँ का कानून व्यवस्था को सुस्त रखना उनका कर्तव्य है। मैं उनसे अपील करता हूं कि ये बोल्ड कदम लीजिए और उनको डिपार्टमेंटली साथ साथ में उनको सस्पेंड कीजिए जो इस घटना में इन्वॉल्व है। और बाकी कानून का दायरे में जो आएगा, हाईकोर्ट के द्वारा जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो हाईकोर्ट उनको कानून के हिसाब से सजा देगा। लेकिन उससे पहले जो अभी इस घटना में इन्वॉल्व है उसको तुरंत सस्पेंड करना जरूरी है। ये कदम लेना चाहिए हम लोग को सरकार का तरफ से, यही मेरा प्रार्थना है। और साथ साथ में अभी भी मुआवजा का कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया है, मुआवजा का भी डिक्लेरेशन करना चाहिए ना। वही तो लग रहा है, क्योंकि सरकार को लगता है कि ट्रांसफर कर देने से यहाँ का जनता ठंडा हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता सब भूल जाएगा और ऐसे ही केस खत्म हो जाएगा।